خواتین و حضرات، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں اور سائنس اور آرٹس یعنی ادب اور سائنس کا ایک حسین اور حیرت انگیز امتزاج بھی ہیں۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو مکمل ہے۔ وہ ایک ماہر تعلیم ہیں، ایک بہترین استاد، سائنس میں محقق اور ناقد یعنی ریسرچ بھی کرتے ہیں اور کریٹک بھی ہیں۔ وائس چانسلر کا عہدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انتظامی امور پر بھی ان کی گرفت مکمل اور مضبوط ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں سائنس کے بیک گراؤنڈ نے ان کے اندر ریئلسٹک تھنکنگ کی صلاحیت کو جلا بخشی۔ ان کے سائنٹیفک پیپرز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ حیران کن ایک بہت لمبی لسٹ ہے، اور پھر مزید ان تمام کل وقتی مصروفیات کے اور مسائل کے دوران، یعنی کراچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا کوئی مذاق نہیں ہوتا، وہ شاعری کب اور کیسے کر لیتے ہیں پتہ نہیں۔ ان کے تحقیقی مقالے قومی اور بین الاقوامی رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو میں ان کی 3 کتابیں ہیں جن میں ان کا کلام ہے، اور اس کے علاوہ مختلف مضامین کی تعداد بھی کافی ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے تند ہوا کے جشن میں، اور دوسرا مجموعہ کلام ہے شعلے پر زبان۔ ان کی تیسری کتاب کا نام ہے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ دراصل ان کے شاگردوں اور مداحوں کا ان کے لیے نذرانہ عقیدت ہے۔ اس میں پہلی 2 کتابوں کا منتخب کلام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ غیر مطبوعہ کلام بھی ان کا اس میں شامل ہے۔ چوتھا مجموعہ کلام ابھی زیر غور ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے ان کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے، جس کے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، جو بجھ گیا تو سحر نما ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی، وہ بات جو آپ کہہ نہ پائے میری غزل میں بیاں ہوئی، میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں آپ کا حرف مدعا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ دور آشوب دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت، یہ دور آشوب دوستی ہے مگر میرا حوصلہ سلامت، میں سب کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں سب کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت ہی شائستگی سے ہر لہجہ ڈوبتی ایک صدا کی صورت، بہت ہی شائستگی سے ہر لہجہ ایک ڈوبتی صدا کی صورت، میں خلوت جام میں بجھ رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پیرزادہ صاحب جتنے عمدہ شاعر ہیں اتنے ہی اچھے انسان بھی ہیں، بے حد نفیس اور بے حد وزادار۔ اور اب میں درخواست کروں گی جناب حاتم رانی سے کہ وہ تشریف لا کر ان کی نظم سنائیں۔ جناب حاتم رانی صاحب۔ شکریہ بہن، صدر صاحب کی اجازت سے۔ پیرزادہ قاسم کی ایک نظم اس نے کہا، پھر اس نے کہا، پھر اس نے کہا، اس دنیا کی یہ آرائش یہ زیبائش، اس دنیا کی یہ آرائش یہ زیبائش سب مجھ کو اچھی لگتی ہیں، سب مجھ کو اچھی لگتی ہیں، اور تم بھی اچھے لگتے ہو، اور تم بھی اچھے لگتے ہو۔ یہ حسن نظر یہ حسن بیاں یہ مصرع تر ہے، یہ حسن نظر یہ حسن بیاں یہ مصرع تر ہے، ذو افشاں۔ ہر شعر میں 100 راز پنہاں،
ہر شعر میں سو سو راز پنہا، انداز سخن تاباں تاباں سب مجھ کو اچھے لگتے ہیں۔ انداز سخن تاباں تاباں سب مجھ کو اچھے لگتے ہیں۔ اور ایک وقفہ سوچ کا لہرایا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ دنیا، یہ آرائش، یہ زیبائش، مجھے یہ دنیا، یہ آرائش، یہ زیبائش، یہ غزلیں، نظمیں، گیت سبھی، یہ نظمیں، دھن، سنگیت سبھی کچھ بے قیمت سے لگتے ہیں۔ مجھے یہ دنیا، یہ آرائش، یہ زیبائش، یہ غزلیں، نظمیں، گیت سبھی، یہ نغمے، دھن، سنگیت سبھی کچھ بے قیمت سے لگتے ہیں، سو مجھ کو کچھ درکار نہیں، ہاں جذب دروں بیکار نہیں، ہاں جذب دروں بیکار نہیں۔ دل چاہتا ہے بس اتنا ہو، دل چاہتا ہے بس اتنا ہو، ہر شام کے ڈھلتے سورج کا، ہر شام کے ڈھلتے سورج کا ایک عکس تمہاری آنکھوں میں، ہر شام کے ڈھلتے سورج کا ایک عکس تمہاری آنکھوں میں لہرا جائے، ایک عکس تمہاری آنکھوں میں لہرا جائے اور میں دیکھوں۔ ہر صبح نکلتے سورج کی، ہر صبح نکلتے سورج کی وہ پہلی کرن، ہر صبح نکلتے سورج کی وہ پہلی کرن لرزاں ہو میری آنکھوں میں اور تم دیکھو۔ شکریہ۔ بہت شکریہ حاتم رانی صاحب۔ اور اب درخواست ہے جناب عبدالستار غزالی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور غزل سنائیں ہمیں۔ یہ ایک بات یہ ہے، بندہ مسکرا کیوں رہا ہے میرے آگے؟ آپ کو مس کر رہے ہیں اس لیے آج خوش ہیں سب آپ کو دیکھ۔ شکریہ جناب۔ پوز بنا رہے ہیں سب میں آپ کو دیکھ۔ اچھا جناب صاحب صدر اور صاحب چیف گیسٹ صاحب اجازت ہے؟ شکریہ جناب۔ میں نے اگر ترنم شروع کر دیا تو حال خالی ہو جائے گا۔ ایسے جناب یہ ایک جی آپ کو تو بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا جی یہ ہے، میں نے کوشش کی ہے اور بڑے استاد سے میں نے اس کی صلاح وہ کیا کہتے ہیں اصلاح لی، تو اس کے بعد بھی ناکام رہوں تو اب کس کی ناکامی ہوئی یہ سوچ لیجیے گا۔ اچھا جناب وہ فرماتے ہیں، یہ ایک میرا خیال ہے غزل ہے بہت طویل اور اس میں سے ہم نے کچھ کاٹ پھیٹ کی ہے، اس کے بعد بھی کافی طویل۔ پیرزادہ صاحب فرماتے ہیں، کدورتوں کے درمیاں عداوتوں کے درمیاں تمام دوست اجنبی ہیں دوستوں کے درمیاں، تمام دوست اجنبی ہیں دوستوں کے درمیاں، زمانہ میری داستاں پہ رو رہا ہے آج کیوں، زمانہ میری داستاں پہ رو رہا ہے آج کیوں، یہی تو کل سنی گئی تھی کہکہوں کے درمیاں، یہی تو کل سنی گئی تھی کہکہوں کے درمیاں، ہزار سست رو سہی چلا تو جا رہا ہوں میں، طویل راہ عشق پر صعوبتوں کے درمیاں، طویل راہ عشق پر صعوبتوں کے درمیاں۔ اچھا جناب آگے فرماتے ہیں،
शऊर असर ढूंढता रहा है मुझको, शऊर असर ढूंढता रहा है मुझको, और मैं मगन हूँ अहद रफ्तगां की अजमतों के दरमियान। ये सोचते हैं कब तलक ज़मीर को बचाएंगे, ये सोचते हैं कब तलक ज़मीर को बचाएंगे, अगर यूं ही जिया किए ज़रूरतों के दरमियान, अगर यूं ही जिया किए ज़रूरतों के दरमियान। और ये और बात है कि नेज़े ज़मा पे हूँ मगर, ये और बात है कि नेज़े ज़मा पे हूँ मगर, मैं सर बुलंद आज भी हूँ दुश्मनों के दरमियान। ज़मीर असर में कभी नवाए दर्द में कभी, ज़मीर असर में कभी नवाए दर्द में कभी, सुखन सरा तो मैं भी हूँ सदाकतों के दरमियान। और क़यामतें गुज़र गईं, क़यामतें गुज़र गईं किसी के इंतज़ार में, हुनूज़ मुंतज़िर हूँ मैं क़यामतों के दरमियान। और इसका आखिरी शेर है इस तवील गज़ल का, हज़ार बुर्दबारियों के साथ जी रहे हैं, हज़ार बुर्दबारियों के साथ जी रहे हैं हम, महाल था ये कार ज़ीस्त वहशतों के दरमियान, और कदूरतों के दरमियान, अदालतों के दरमियान, अदावतों के दरमियान तमाम दोस्त अजनबी हैं दोस्तों के दरमियान। अगर कोई गलती हो तो कहा सुना माफ़ कर दीजिए। शऊर असर ढूंढता रहा है मुझको, और मैं मगन हूँ ऐद रफ्तगां की अज़मतों के दरमियान, जो कि बहुत हम लोगों पर ये शेर सादिक भी आता है। बहुत शुक्रिया जनाब गज़ाली साहब। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, गज़ाली साहब आप फारिग हो जाइए हाथ मिलाने से, तो फिर आगे बढ़ें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, शायरी से इंसान का रिश्ता बाबा आदम के ज़माने से है। हर दौर में इंसान शेर व शायरी के ज़रिए अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार करता रहा है। उर्दू गो के एक निस्बतन कम उम्र ज़बान है, और उसने गुज़श्ता 300-400 सालों में ख़ास तौर पर अपने इर्तिक़ाई मदारिज तय किए हैं। लेकिन बहरहाल उर्दू शायरी, गज़ल और नज़्म का तो जवाब ही नहीं। कहते हैं कि शायर या तख्लीक़कार के लिए ज़रूरी है कि वो ज़ूद हिस बेदार ख़याल हो, ज़ूद हिस और बेदार ख़याल हो, अपने हालात तो माहौल से हमाहंग हो और असर हाजिर का शऊर रखता हो। इसी तरह एक अच्छे शायर के लिए तख्लीक़ी जौहर से मालामाल होने के साथ सच्चा और बाज़मीर होना भी इंतहाई ज़रूरी है। आज के दौर के शायर का मुआवजना आप मीर और गालिब से या हाली और इकबाल से नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के दौर के मसाइल कुछ और थे और आज का इंसान कुछ और मसाइल से, किसी और दौर से गुज़र रहा है। आजकल खुदकुश हमलों का फैशन है, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाले ऐप्स हैं, ड्रोन्स हैं। इनका तो तसव्वुर भी गुज़श्ता ज़मानों के शायरों ने किया भी नहीं होगा। और जो गालिब साहब का कहना था कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के 4 दिन बैठे रहें, फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए, इन हालात का तो तसव्वुर भी मुश्किल है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि आज के शायर को आप आज के हवाले से देखें और परखें, और ये देखें कि उसने जो कुछ लिखा है वो आज के दौर में हम लोगों पे पूरा उतरता है कि नहीं, हमारे ख़यालात और एहसासात की तर्जुमानी होती है या नहीं होती। बहरहाल अब मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा कौसर सैयद साहिबा से कि पीरज़ादा साहब की एक गज़ल पेश करें। मोहतरमा कौसर सैयद। अस्सलाम वालेकुम।
अजब है हम, ये किसकी सही ये ला हासिल पे रोते हैं। अजब है हम, ये किसकी सही ये ला हासिल पे रोते हैं। अभी जिंदा हैं और नाकाम ये कातिल पे रोते हैं। हमें रह रह के तूफान की रिफाकत याद आती है। हमें रह रह के तूफान की रिफाकत याद आती है अब आसूदे साहिल, खड़े साहिल पे रोते हैं। बहुत हमको रुलाया माजियो इमराज ने सो अब, बहुत हमको रुलाया माजियो इमराज ने सो अब। निशाते गिरिया ऐसा है कि मुस्तकबिल पे रोते हैं। बहुत आसूदाए जां हैं सो अब तूफान खूं अक्सर। बहुत आसूदाए जां हैं सो अब तूफान खूं अक्सर। हमारे दिल से उठते हैं इस आबो गिल पे रोते हैं। गिरोहे आशिकां था शहर गिरिया उनकी मंजिल थी। गिरोहे आशिकां था शहर गिरिया उनकी मंजिल थी। ये रास्ते भर भी रोते आए अब मंजिल पे रोते हैं। कहाँ रोते हैं हम आगाज़ तनसीख़े ताल्लुक़ पर। कहाँ रोते हैं हम आगाज़ तनसीख़े ताल्लुक़ पर। जो खींची जा चुकी है उस हदे फासिल पे रोते हैं। अचानक सारे रिश्ते सारे चेहरे अजनबी ठहरे। अचानक सारे रिश्ते सारे चेहरे अजनबी ठहरे। भरी महफिल में हम वीरानी महफिल पे रोते हैं। अजब है हम, ये किसकी सही ये ला हासिल पे रोते हैं। अभी जिंदा हैं और नाकामी कातिल पे रोते हैं। अचानक सारे रिश्ते सारे चेहरे अजनबी ठहरे। भरी महफिल में हम वीरानी महफिल पे रोते हैं। बहुत शुक्रिया कौसर सैयद साहिबा। डॉक्टर पीरजादा का कहना है कि जब उन्होंने दुनिया में आँख खोली, यानी 1943 के आसपास, जब उस ज़माने में उस वक्त दूसरी जंग अज़ीम की दम तोड़ती आहटें थीं, और उसी के साथ उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी का फ़ैसला कुन मरहला तय करते देखा। ये एक बहुत ही पुरआशोब दौर था। फिर हिजरत के बाद एक नई सरज़मीन में आकर आज़ादी का सांस उन्होंने और उनके बुज़ुर्गों ने लिया। मगर हकीकत ये भी है कि गैरों से तो आज़ादी हासिल कर ली, मगर अपनों से जमहूरियत की जंग हारते ही रहे। और ये तमाम अवामिल जो हैं वो एक हसास शायर की शायरी पर ज़रूर असरअंदाज होते हैं। पीरज़ादा साहब के बक़ौल शायरी उनकी पहली मोहब्बत है और इससे बेवफाई का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उनके घराने की इल्मी, अदबी, दीनी, समाजी और सियासी रिवायतें उनकी ज़हनी और फ़िक्री तरबियत का ज़रिया बनी हैं। पीरज़ादा कासिम की शायरी आज के हालात से हम-आहंग है और यही एक अच्छे शायर की पहचान है। जिस तरह मीर व गालिब, फैज़ व फराज अपने अपने दौर के शायर भी थे और तारीख़ निगार भी थे, इसी तरह पीरज़ादा कासिम की शायरी को भी आप आजकल के हालात की तारीख़ी दस्तावेज़ भी कह सकते हैं। और ख़वातीन हज़रात, कुछ शेर या गज़लें या नज़में बाज़ दफ़ा इतनी मकबूल हो जाती हैं कि शायर की पहचान बन जाती हैं। पीरज़ादा साहब की एक बहुत मशहूर और मकबूल आम गज़ल सुनाने के लिए मैं जनाब इस्मत कमाल को दावत दे रही हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। गज़ल पेश खिदमत है आपकी इजाज़त से। शायर की ज़ुबानी इतनी बार सुन चुका हूँ कि उसी तरन्नुम की कोशिश करूँगा, अगर गले ने साथ दिया, गला ख़राब हो।
खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे दे दिया गया एक दिया बुझा हुआ। एक ही दास्तान शब, एक ही सिलसिला तो है, एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ, एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ। महफिल रंगो नूर की फिर मुझे याद आ गई, महफिल रंगो नूर की फिर मुझे याद आ गई, फिर मुझे याद आ गया, फिर मुझे याद आ गया एक दिया बुझा हुआ। मुझको निशात से फुज़ूं रस्म वफा अज़ीज़ है, मुझको निशात से फुज़ूं रस्म वफा अज़ीज़ है। मेरा शरीक शब रहा एक दिया बुझा हुआ, दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही, वरना मेरी बिसात क्या, वरना मेरी बिसात क्या एक दिया बुझा हुआ। सब मेरी रोशनी ये जान हर्फ़ सुखन में ढल गई, सब मेरी रोशनी ये जान हर्फ़ सुखन में ढल गई, और मैं जैसे रह गया एक दिया बुझा हुआ। खून से जब जला दिया एक दिया। दर्द की कायनात में मुझसे भी रोशनी रही, वैसे मेरी बिसात क्या एक दिया बुझा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इस्मत कमाल साहब। आपसे मैंने दरख्वास्त की थी कि आप तरन्नुम से सुनाएं, और आप लोगों से मैंने कहा था कि पीरज़ादा कासिम का बहुत उम्दा तरन्नुम है, तो उसकी मिसाल अभी आपके सामने पेश कर दी गई। अब दरख्वास्त है जनाब मोहतरमा लुबना मंजर साहिबा से कि वो पीरज़ादा कासिम के ऊपर एक मकाला सुनाएं और साथ ही एक गज़ल भी उनकी पेश करें। मोहतरमा लुबना मंजर साहब। बहुत शुक्रिया गज़ल साहबा। इस्मत कमाल साहब ने बहुत खूबसूरत गज़ल हमें सुनाई, मज़ा आ गया। महफिल में पीरज़ादा साहब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ मौजूद है। पीरज़ादा साहब के हवाले से मैं आज आपके सामने एक मज़मून से कुछ इक़्तिबासात पेश करना चाहूँगी। ये मज़मून जनाब जाज़िब कुरैशी की किताब तख्लीक़ी आवाज़ से लिया गया है। पीरज़ादा कासिम पर उनकी ये तहरीर कई साल पहले लिखी गई है। यहाँ इनके इस मज़मून के कुछ इक़्तिबासात मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इस मज़मून का उन्वान है दरिया की प्यास। जनाब जाज़िब कुरैशी अपनी इस तहरीर में पीरज़ादा कासिम के बारे में लिखते हैं कि कोई 35 बरस पहले मैंने रेडियो पाकिस्तान से एक शेर सुना था कि मुझको तलक़ीन सब्र व रज़ा और ख़ुद आसमां हो गए। पीरज़ादा कासिम का ये मुझसे पहला तारुफ़ था। इस शेर ने कराची में खूबसूरत आवाज़ का इजाफ़ा किया था।
गुज़िश्ता 30 बरसों में जो शायर कराची से सामने आए हैं उनमें पीरज़ादा कासिम का नाम बड़ी अहमियत रखता है। मुझे पीरज़ादा कासिम को सुनने और पढ़ने के बहुत से लम्हे मिले हैं जिनके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जिस मेहनत और जिस हुनरवरी से सिफ़ाले जाँ को कोज़ागरी के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजारा है वो दुश्वार भी है और मोतबर भी है कि पीरज़ादा कासिम की तख्लीकी आवाज़ पाक व हिंद से आगे बढ़कर मशरिक़ वस्ता और मगरिबी ममालिक तक जा पहुँची है जहाँ उनको जानने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। मैं जानता हूँ कि पीरज़ादा कासिम की इस मकबूलियत और शोहरत में उनकी शख्सी और तख्लीकी क़ुव्वत गर्दिश कर रही है। पीरज़ादा कासिम ने ख़ुद लिखा है, रोशनी जाँ को हरफ सुखन बनाने का अमल मेरे यहाँ गैर फितरी तौर पर नहीं आया, बल्कि इसके मुहर्रिकात में मेरे घर की अदबी और इल्मी फ़िज़ा और मेरे घराने की समाजी, सियासी और दीनी रिवायतें शामिल हैं जिनमें मैंने इन्हीं रिवायतों से इस्तिफ़ादा किया। उन्होंने ज़िंदगी के तजुर्बात में तहज़ीबी शऊर और तख्लीकी जमालियात को हमेशा अहमियत दी है। उनके यहाँ ज़िंदगी के जबर को मनफी असरात से बचाकर अज़बाती रवैयों में तब्दील करने की शदीद ख्वाहिश नज़र आती है। ये बरगुबार भी ले जाओ चोबे जाँ भी मगर, ये बरगुबार भी ले जाओ चोबे जाँ भी मगर, नमू की एक रमक तो शजर में रहने दो। पीरज़ादा कासिम शहर जबर में हों या दश्त मजबूरी में, वो इंसानी ज़ात में क़ुव्वत नमू देखना चाहते हैं जिनके हवाले से नफ़ी को अज़बात में और दुखों को आसूदियों में बदलने का इम्कान पैदा हो जाता है। कोई नहीं सफ़र की शर्त जो भी चले चले मगर, दर्द से तेज़ उठ सके जहाँ से तेज़ जा सके। मेरा कशकोले अना खैर से खाली न हुआ, मैं तही दस्त रहा फिर भी सवाली न हुआ। हवा की शाख पे खुशबू का एक फूल खिला, हवा की शाख पे खुशबू का एक फूल खिला, ये कार फन था तो इसमें हमें ज़माने लगे। इश्क हिसारे ज़ात से दूर बहुत निकल गया, इश्क हिसारे ज़ात से दूर बहुत निकल गया, ऐसे में जबर वक्त भी होता है कारगर कहाँ। पीरज़ादा कासिम ने लिखा है, शायरी मेरी पहली मोहब्बत है और मैं इस सिलसिले में हमेशा संजीदा रहा हूँ। पीरज़ादा की शायरी गज़ल की शायरी है, लेकिन उन्होंने नज़में और नसरी नज़में भी लिखी हैं। कशफी साहब का ख्याल है कि पीरज़ादा की ज़्यादातर नज़में दिल कहानी हैं। इसी मज़मून में आगे जालिब साहब लिखते हैं, पीरज़ादा का ख्याल खुली हुई खिड़कियों का, ताज़ा हवाओं का और मौत की खबर का हमेशा खैर मकदम करता रहा है, लेकिन उन्होंने टूट कर बिखर जाने से पहले आखिरी बार एक ऐसी तख्लीक करना चाहिए है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम ख्वाब देख सकें। इस हवाले से उनकी एक नस्री नज़्म ख्वाहिश देखिए। इससे पहले कि मेरा वजूद हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाए, एक आखिरी बार मैं उसे तख्लीक करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह कि उसके सीने में मेरा दिल हो और उसके चेहरे पर मेरी आंखें हों। पीरज़ादा कासिम का शेरी मजमुआ शोले पे ज़ुबान जब शाया हुआ तो अली सरदार जाफरी ने पीरज़ादा कासिम को क़यामत मौजूद का शायर कहा। ये उस ज़माने की बात है जब हम सब एक ऐसे आशोबे शहर से गुज़र रहे थे जो मीर के शहर की तरह सैलाब में बह नहीं गया था, बल्कि खून के सैलाब में डूब रहा था। हम मख्तलों के दरमियान ज़िंदा थे और इंतहाई दुख देने वाले तल्ख़ तजुर्बों को लिख कर अपनी माशरती ज़िंदगी की तारीख़ का हिस्सा बना रहे थे। कफन बांधे हुए ये शहर सारा जा रहा है क्यों, कफन बांधे हुए ये शहर सारा जा रहा है क्यों, सुए मक्तल ही हर रास्ता हमारा जा रहा है क्यों। ये असरे नौ की चिताओं में आग कैसी है, ये असरे नौ की चिताओं में आग कैसी है कि रूह राख हुई और बदन जला भी नहीं। पीरज़ादा कासिम ने कई बहुत अच्छी मुसलसल गज़लें लिखी हैं जो उनकी शोहरत और मकबूलियत में इजाफ़ा करती हैं। मिसाल के तौर पर आप सब जानते हैं, जिनका भी जिक्र भी हुआ, कि खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, या गम से जलते चेहरों को रोशनी न समझा जाए, ये चराग हूँ कब से जल रहा हूँ मुझे दुआओं में याद रखिए, ये गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। पीरज़ादा कासिम की गज़लों के साथ और भी बहुत सी गज़लें हैं जो उनकी पसंदीदगी का जवाज़ बनी हैं। पीरज़ादा का उसलूब खुशगोई, नरम कलामी, लहजे की शाइस्तगी और जमालियाती गुफ्तार के रंग अपने अंदर समेटे हुए हैं।
उन्होंने अपने तजुर्बों के तख्लीकी इजहार के लिए जो शेरियात मुरतब की हैं वो जदीद असालीब की शेरियात हैं, जिनके दरमियान पीरज़ादा कासिम की शख्सी शाइस्तगी भी उनके तख्लीकी विजन में तवाज़ुन का सबब बनी है। पीरज़ादा कासिम ने शायरी की तहज़ीबी रिवायत से और ज़िंदगी की असरी आगही से ख़ुद को इस तरह पेवस्त रखा है कि उनके अंदर गैर महज़्ज़ब आवाज़ों का कोई बेहंगम शोर नहीं है और उनकी शायरी कोहनगी, क़दामत या फरसुदगी के बंजरपन से बहुत फासलों पर है। पीरज़ादा जदीद आदमी की दाखिली और ख़ारजी आगही के इल्मी और तख्लीकी इजहार का तारीख़ी और तजुर्बाती शऊर रखते हैं। ये दौरे आशोबिया दोस्ती है मगर मेरा हौसला सलामत, मैं सब के बारे में सोचता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिए। ये कुछ इक़्तिबासात हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए और अब साहिब सदर की इजाज़त से गज़ल पीरज़ादा साहब की। बेदिली से हंसने को खुशदिली न समझा जाए, बेदिली से हंसने को खुशदिली न समझा जाए, गम से जलते चेहरों को रोशनी न समझा जाए। लाख खुशगुमाब दुनिया बाहिमी ताल्लुक़ को, लाख खुशगुमा दुनिया बाहिमी ताल्लुक़ को दोस्ती कहे लेकिन दोस्ती न समझा जाए। हम तो बस ये कहते हैं रोज़ जीने मरने को, हम तो बस ये कहते हैं रोज़ जीने मरने को, आप चाहे कुछ समझें ज़िंदगी न समझा जाए। गाह गाह वहशत में घर की समत जाता हूँ, इसको दश्ते हैरत से वापसी न समझा जाए। खाक करने वालों की क्या अजीब ख्वाहिश है, खाक करने वालों की क्या अजीब ख्वाहिश है, खाक होने वालों को खाक भी न समझा जाए। बेदिली से हंसने को खुशदिली न समझा जाए, गम से जलते चेहरों को रोशनी न समझा जाए। शुक्रिया। लाख खुशगुमा दुनिया बाहमी ताल्लुक़ को दोस्ती कहे लेकिन दोस्ती न समझा जाए। बहुत शुक्रिया लुबना मंजर साहिबा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मकाला भी सुनाया। उसके साथ ही अब हम अपने पहले दौर का इख्तिताम करते हैं। सब्र से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।